Hello CA students, this is CA Aniruddha Frene. Today I'm going to discuss the CA Intermediate November 23 Cost and Management Accounting paper. A lot of students messaged me that they wanted me to discuss this paper. So today I'm gonna do that. So overall, when I saw the paper, I found the paper quite good. It was not that difficult. So first question here we can see is a EOQ question. Basically, material chapter, first chapter material से है EOQ, EOQ reorder level, maximum stock level. So this is, I think, a normal question from material costing based on levels and EOQ. So 5 marks is 4 marks, sorry, 5 marks for that. Next is based on labor, Halsey, Rowan. Halsey, they have asked, Rowan, they have asked, formula based labor chapter, again 5 marks. C is basically joint cost, joint product cost. Again, a 5 mark question, not that difficult. Split off point. Prepare a statement showing apportionment of joint cost based on NRV, and then assume they have received an offer and all that. So a normal joint cost sum. Then question D is, what is this? Contract. So it's again a basic contract sum. Small 5 marks contract costing sum it is there. So contract price is given, everything is given. They got to make a contract account, debit the expense, and supervisor 40% time allocate, depreciation, architect certificate has been issued by covering 50%, so work certified will get. So I think a basic sum you just have to calculate notional profit manageable. So first 20 marks so I think is very easy, nothing difficult. 20 marks तो मिलना चाहिए students. Question 2A. Question 2A में क्या है? Looks like a cost sheet sum. Yes, it's a cost sheet sum. अभी एज अ कॉस्टिंग स्टूडेंट कॉस्ट शीट का फॉर्मेट अगर आपको पता है, starting with direct material, direct labor, direct expense, prime cost, factory overhead, factory cost, all that till sales, then I think you are sorted. And as I question I think I have seen in the module also. Module में एक similar question है. So cost sheet का format आ गया तो काम हो गया. So I always tell students कि बॉस format अच्छे से करके जाओ. Format अच्छे से करोगे तो एग्जाम में याद आएगा, 10 मार्क आपके हाथ में आ जाए. ठीक है. And they have asked for these things: prime cost, factory cost, cost of production, cost of goods sold, and then next question into question 2B. Question 2A was 10 marks. Question 2B is also 10 marks. Question 2B is, I guess, budget का लग रहा है. So yeah, they have given quantity of sales, they have given selling price, 4 different types of products they have given, and they have given information कि कितना demand है and all that, and then they have given closing stock quantities for every month. So monthly you have to do production budget. They have asked for production and sales budget. Again, budgeting अगर अच्छे से किया तो I don't think problem. Budget actually is always scoring. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि बजट करके जाओ, 10 मार्क का वेटेज आ सकता है. एंड देखो 10 मार्क का बजट का क्वेश्चन है. So production budget, sales budget are normally easy sums, and units produced, हमेशा मैं बोलता हूँ units produced का sales का वो एक फॉर्मूला है, opening stock plus units produced less closing stock is units sold. उस पे पूरा आप कर सकते हैं, and closing stock becomes the opening stock of the next month. वो लॉजिक पे पूरा आप कर सकते हो. Then this is basic overhead. Overhead chapter तो I think everyone should be knowing. Overhead तो आता ही है.
एंड इट इज यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है एंड देन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है. सो 10 मार्क का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे ओवरहेड्स का. क्वेश्चन 3A, दे हैव गिवन कॉस्ट ड्राइवर्स लाइक फ्लोर एरिया एंड ऑल दैट. तो क्लियरली दे हैव सीन, देखो, prepare a statement on distribution overheads. Primary distribution है, total budget overheads of both production department after service departments have been reapportioned to them. तो सर्विस डिपार्टमेंट्स का भी रीअपोर्शनिंग मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है. सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या बोला है? स्टेप मेथड से करना है. आई थिंक स्टेप मेथड इन द सेम ऑर्डर विद आर एंड एस रिस्पेक्टिवली ऑन द फॉलोइंग. आर का नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का एंड एस का मशीन आवर. स्टेप मेथड के हिसाब से करना है. सो पहले आर का करो एम्प्लॉयज के बेसिस पे, एस का करो मशीन आवर्स के बेसिस पे. सो प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक सम. क्वेश्चन 3B, आई थिंक ये थर्ड था ना, या क्वेश्चन 3B. क्वेश्चन 3B अगेन 10 मार्क्स. ऑपरेशनल कॉस्टिंग. ऑपरेशनल कॉस्टिंग का होटल का सम है, रूम रेंट निकालना है. ऑपरेशनल कॉस्टिंग का रूम का सम है, डुलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव रूम, स्वीट, ये है मॉड्यूल में. ऐसे टाइप का सम मॉड्यूल में है. ऑलवेज आई टेल मॉड्यूल अच्छे से करो बॉस. मॉड्यूल करोगे स्कोर करोगे. एंड मॉड्यूल मतलब सिर्फ जो सम सॉल्व है वो नहीं, पीछे के सम्स भी जो दिए है प्रैक्टिकल वो भी करने हैं. बहुत बार ऐसा देखोगे कि सम्स लाइक चैप्टर्स लाइक मटेरियल लेबर, 13 सम स्टार्ट में है, 17 सम्स एंड में है, मतलब चैप्टर के पीछे. तो यू कैन नॉट इग्नोर देम. ये क्या है? 4A. 4A क्या बोल रहा है? देखो 4A इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. नाउ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर आपको अच्छे से आ रहा है, आई थिंक हर अटेम्प्ट में 10 मार्क 12 मार्क का क्वेश्चन आता है. हमेशा अच्छे से करके जाओ. सो माय स्टूडेंट्स, आई ऑलवेज टेल देम अच्छे से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करो. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अगर आपको आ रहा है तो बजट भी एक्चुअली आ जाता है. बजट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सब काइंड ऑफ थोड़े सिमिलर चैप्टर्स है. सो ये क्लियरली एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सम है. 4A. कॉस्ट ड्राइवर्स आर गिवन, ओवरहेड्स दिए है. सो आई थिंक इट्स अ बेसिक सम. ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड डिफरेंस, ऐसा सब मॉड्यूल में भी है. फिर दिस इज अ सम दैट इज देयर, सिमिलर सम इज इन द मॉड्यूल. शटडाउन पॉइंट निकालना है. शटडाउन पॉइंट का फॉर्मूला नॉर्मली ब्रेक इवन पॉइंट जैसा निकलता है. ब्रेक इवन पॉइंट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. यहाँ पे फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो करके शटडाउन पॉइंट निकलता है. सो ये एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग का सम है. दिस इज अ मार्जिनल कॉस्टिंग सम. एंड मार्जिनल कॉस्टिंग जैसे चैप्टर्स तो आप इग्नोर नहीं कर सकते. हमेशा मैं बोलता हूँ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, आप देख रहे हो मटेरियल लेबर ओवरहेड आ ही गए. देन मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट एंड एक्टिविटी, ये करना है. ये सब चैप्टर्स देख रहे हैं आपको, वही आ रहा है. दिस इज प्रोसेस. प्रोसेस. नाउ यू गाइस आर लकी कि प्रोसेस का इजी क्वेश्चन पूछा है. यहाँ पे बेसिक प्रोसेस अकाउंट्स दो दिए हैं एंड WIP नहीं है. WIP जब प्रोसेस में होता है तो आपको पता है सम बिकम्स डिफिकल्ट. ये बेसिक प्रोसेस का सम है, आपको प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं. सो दे आर आस्किंग फॉर प्रोसेस अकाउंट A एंड B. सो A का आउटपुट B में जाएगा, B से फाइनल प्रोडक्ट बनेगा. देन क्वेश्चन 5A 10 मार्क्स इज, दिस सीम्स टू मी लाइक अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सम. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ओवरहेड वेरिएंस है. ओवरहेड वेरिएंस के फॉर्मूले आ गए तो मेरे ख्याल से आ जाएगा. ऐसा टाइप का सम मैंने शायद RTP में या किधर तो देखा हुआ है ऐसे टाइप का, बिकॉज दे हैव गिवन ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. तो उसके हिसाब से आपको निकालना है एंड इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. सो ये कुछ वेरिएंसेस दे हैव आस्क्ड, तो आपको वो निकालने हैं. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अल्टीमेटली फॉर्मूले आ रहे हैं तो आ जाता है, नथिंग डिफिकल्ट. दिस इज व्हाट दिस इज, ये जॉब कॉस्टिंग टाइप लग रहा है. तो दिस इज लाइक अ स्मॉल कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग टाइप बनाना है. सो डेटा दिया हुआ है, यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, वेजेस, ये वो, तो उसके हिसाब से आपको वो कैलकुलेट करना. फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स इन प्रॉफिट फॉर द मंथ. दिस इज इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग. एंट्रीज मारनी है. नाउ इंटीग्रेटेड कॉस्टिंग में मैं हमेशा बोलता हूँ एंट्रीज ही याद करके जाओ. एंट्रीज याद किया तो आ जाएगा, 4 मार्क हाथ में आ जाएगा. बाकी थियरी है 6 मार्क का.
6 मार्क का क्या बोला, क्वेश्चन 6 इज थियरी 20 मार्क्स का. सो मेरे जो स्टूडेंट्स है, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि थियरी तक आने की जरूरत ही नहीं है. पहले 5 क्वेश्चंस आपको थरोली आने चाहिए. थियरी इज लाइक, आप जब प्रैक्टिकल पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते जो एक्स्ट्रा आजू बाजू कुछ थियरी वो पढ़ लेते हो, वो पढ़ लेना, उतना मोर देन इनफ हो जाता है. बिकॉज सब यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स. जैसे अभी ये देखो, टर्म्स पूछे है, प्री डिटरमाइंड कॉज, एस्टिमेटेड कॉज, इम्प्यूटेड कॉज, डिस्टिंक्शन कॉज, ये आप लिख सकते हो अपने वर्ड्स में. सिमिलरली एक लीफो फीफो का कुछ पूछा है, मटेरियल्स पे पूछा है, तो आप इसका ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन दे सकते हो. सो अगर आपको मटेरियल कॉस्टिंग अच्छे से आता है, थियरी आना चाहिए. देन ये क्या है, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी के बारे में कुछ है, लिख सकते हो आप. मतलब ऐसा कुछ अलग से थियरी का कभी मैं पढ़ाई आई डोंट एडवाइस, जरूरत भी नहीं है. एंड अगेन फॉलोइंग दिस. बट मेरा टेक्निक क्या है ना, व्हाट आई सजेस्ट स्टूडेंट्स की, बॉस आप प्रैक्टिकल पे फोकस करो. अगर पहले 5 क्वेश्चंस आपको परफेक्टली आने चाहिए, फुल मार्क्स यू शुड अटेम्प्ट. फिर इंस्टीट्यूट देखेगा कि आपको कितने मार्क्स देने. सो ऐसा नहीं कि आपने फुल मार्क्स का पेपर लिखा तो आपको फुल मिलेंगे. थोड़ा ऑब्वियसली इधर उधर मिस्टेक है, वो इंस्टीट्यूट का थोड़ा मॉडरेशन है, वो करके आपको 80 प्लस मिलना चाहिए अगर आप अच्छे से करोगे तो. क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट नहीं किया तो भी चलेगा, बस क्वेश्चन 5 तक ही आपका 100 मार्क्स हो जाता है. 6 बिकम्स द ऑप्शनल क्वेश्चन. अगर प्रैक्टिकल में नहीं आ रहा तो फिर थियरी लिखना पड़ता है. तो दिस इज द पेपर. आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल पेपर. जिन्होंने कॉस्टिंग का अच्छे से पढ़ाई किया है, दे विल ऑब्वियसली स्कोर एग्जामिनेशन इन दिस. कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगा मुझे. एंड मेरे जो स्टूडेंट्स है, डेफिनेटली दे वुड हैव मैनेज्ड इट प्रीटी वेल. आई एम एक्सपेक्टिंग एग्जामिनेशंस दिस टाइम आल्सो. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ you who have attempted the November 23 exam. I'll soon come with another discussion, another paper next time. Okay, till then, take care. All the best.